Good morning all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next topic of your chapter 6, that is manufacturing industry. The name of the topic is classification of industries. In this topic we have to be learn about the different type of industries that are based on the how we classified the industries on different basis. Okay, in my previous video I explained you about the factors that affect the location of an industry. Under this we have learned that here is the factors like raw material, labor, land, capital, transport, as well as market that affect the location of an industry. And the one important factor, that is the government policies that also try to remove the regional disparities. ये हमने previous video में discuss किया था. And I also discuss about the two classification. One is the classification on the basis of raw material, and second is the classification on the basis of its main role. Okay, but students have some doubts in this topic, that is according to main role. So I am discussing it again. Okay, so let us start the classification of industries. Classification of industries is divided according to the classification. We divided the industries into four main parts. One is the classification on the basis of raw material. Second is the classification on the basis of its role. And third is classification on the basis of capital. Fourth, classification on the basis of ownership. Let us start from the very first, that is classification of industries on the basis of raw material. Raw material, as we all know that every industry need raw material for producing goods. Okay, so on the basis of raw material we divided the industries into two parts. One is agro based industries, second is mineral based industries. Now what do you mean by agro based industries? Agro based means the industries those are getting raw material from the agriculture. The industries those are getting raw material from agriculture, like cotton and textile industry, sugar industry. These are agro based industries. And other is the mineral based industries. Those are getting raw material from, ये कहाँ से मिल रही है? Raw material got from minerals like iron and steel industry. इसमें iron and steel industry में raw material क्या है? Iron ore. तो वो हम कहाँ से ले रहे हैं? That is from minerals. So this is mineral based industry. And there are many other industries like electricity wires, जो industries बनाती हैं, तांबे की तारें, तो वो कॉपर से बन रही हैं, तो कॉपर वायर्स बन रही हैं, तो वो mineral based industry because copper is a mineral. Okay, so this is your mineral based industry. Now the next classification, that is according to its main role. Main role के according we divided the industries into two parts. According to main role we divide the industries into two parts. One is key industry and second is consumer industry. Students, as you all know that industries having some production. इंडस्ट्रीज़ कुछ प्रोडक्शन करती हैं. अब वो दो तरह की प्रोडक्शन होती है. एक तो प्रोडक्शन वो होती है जिसमें प्रोडक्शन जो है वो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द अदर इंडस्ट्रीज़, कि जो एक इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया वो प्रोडक्शन दूसरी इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ हो गया. फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ठीक है, अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने क्या प्रोड्यूस किया? स्टील. ओके, अब यहाँ पर जो यूटेंसिल्स की इंडस्ट्री है, यूटेंसिल्स इंडस्ट्री यूज्ड स्टील एज रॉ मटेरियल. वो क्या कर रही है? वो इसको यूज कर रही है रॉ मटेरियल में टू मेक व्हाट? टू मेक यूटेंसिल्स, राइट ना. तो यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है? वो बेस दे रही है यूटेंसिल इंडस्ट्रीज को. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है? बेसिक इंडस्ट्री और की इंडस्ट्री. वो क्या है? बेसिक इंडस्ट्री और की इंडस्ट्री. ठीक है, अब एक दूसरी इंडस्ट्री है जो प्रोडक्शन दैट इज डायरेक्टली गोज टू द कंज्यूमर. जिसने जो प्रोडक्शन किया वो डायरेक्टली किसके पास चला गया? कंज्यूमर के पास.
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देती हूँ, जैसे प्रोडक्शन उसने की है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कंज्यूमर इंडस्ट्री, ठीक है। अब कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्या है कि प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली गोज टू कंज्यूमर, लाइक पेपर इंडस्ट्री। अब पेपर इंडस्ट्री में क्या हुआ, पेपर प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है, और पेपर को हमने डायरेक्टली कहाँ यूज कर लिया, बाय द कंज्यूमर। वो डायरेक्टली कौन यूज कर रहा है, कंज्यूमर यूज कर रहा है, तो वो पेपर इंडस्ट्री है। तो वो क्या है, वो कंज्यूमर इंडस्ट्री है। सपोज ब्रेड, जिस इंडस्ट्री ने ब्रेड बनाई, तो ब्रेड डायरेक्टली कौन यूज कर रहा है, कंज्यूमर यूज कर रहा है, तो वो भी क्या हो गई, कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई। तो दैट आर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। Okay, now this is the difference of the industries according to its main role. According to main role, we divided the industries into two parts. One is key industry, second is consumer industry. Key industry कौन सी है, जिसमें production used as raw material in the other industries, like iron and steel industry that used is a basic or key industry. Why? Because utensils industry use steel as raw material. इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, बट स्टील तो एक बेसिक प्रोडक्शन है। स्टील को फर्दर हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। स्टील की हम शीट्स घर में यूज नहीं करते हैं, वी आर यूजिंग द थिंग्स दोज आर मेड विद द हेल्प ऑफ स्टील। Okay, तो iron and steel industry is the basic industry. Okay, it is also known as key industry and it is the backbone of industries. ये कहा जाता है, if you remember in class 8th में भी हमने ये पढ़ा था, ठीक है। Now the second is consumer industries, that the production directly goes to consumers. Okay, now come on the third classification. Third classification is on the basis of capital. On the basis of capital, we divided or we classify the industries into two parts. One is small scale and second is large scale. First, you all know the meaning of capital. Capital means money. अब हमने इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए how much we are invested, हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की, that is capital. Okay, और basis of investment पर we divided this into two parts. स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। जिन इंडस्ट्रीज में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, द इंडस्ट्रीज इन विच वी रिक्वायर्ड लेस मनी, लेस कैपिटल, दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एंड द इंडस्ट्रीज इन विच वी रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट, ह्यूज कैपिटल, दैट आर नोन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। हम उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल, देयर आर टू टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। इसमें भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हैं हमारे पास। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ ए यूनिट। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमने जितनी की, दिस लिमिट हैज़ चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ये लिमिट चेंज होती रहती है। पहले, आज से अगर हम 30-40 साल पहले की बात करें तो थोड़ा पैसा लगाकर भी एक बड़ी इंडस्ट्री ओपन की जा सकती थी, बट अगर हम आज की बात करें तो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी हमें एक ह्यूज सम ऑफ मनी जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। तो 1 करोड़ तक हम जिसमें पैसा लगाते हैं वो स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट्स जिसमें हम 1 करोड़ से ज़्यादा लगा रहे हैं, जिसमें यूनिट्स, दिस लिमिट इज चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिवाइड रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। तो स्मॉल स्केल में तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, और जिसमें हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा लगा रहे हैं वो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, वो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। तो कैपिटल के इन्वेस्टमेंट पर वी डिवाइडेड दिस इनटू two parts, small scale and large scale. Okay, now come on the next, that is on the basis of ownership. What do you mean by ownership? Ownership means that industry is run by whom? Either the industry is in the hand of a single person or is in the hand of 2 or more persons, or maybe industry can be run by the government.
Okay, so on this basis, on the basis of ownership, we divided the industries into four parts. Basis of ownership, we divided industry into four parts. One is public sector, second is private sector, third is joint sector, and fourth is cooperative sector. Now, what do you mean by public sector? Public sector means the industries is run by the government. Public sector जिसमें इंडस्ट्रीज कौन चला रहा है? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहती हैं. Here we have the example of SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील प्रोडक्शन जो कर रही हैं, ठीक है. SAIL, this is the example of public sector industry. Second is private sector. Private sector is the industries those run by a single person or a individual. Individual या two or more persons, जो एक ग्रुप के हाथ में है, एक पर्सन के हाथ में है, वो प्राइवेट सेक्टर है. मैंने अपनी इंडस्ट्री खोल ली तो मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर आऊँगी. मैं अपनी फ्रेंड के साथ हैंड ज्वाइन करके इंडस्ट्री खोल रही हूँ तो भी मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, बिकॉज हम दोनों ने अपना एक ग्रुप बनाया, ठीक है. तो private sector industries owned and operated by individual or a group of individual. TISCO, Bajaj Auto Limited, Dabur Industries, these are the example of private industries. TISCO, Tata Iron and Steel Industry, all in the hand of Ratan Tata, ठीक है. तो वो एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, ठीक है. बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज वालों के हाथ में है तो वो एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, ठीक है. डाबर ऐसी ही, वो भी वन हैंड अथॉरिटी है तो डाबर इंडस्ट्रीज है. रिलायंस में चले जाओ, ये सब प्राइवेट इंडस्ट्रीज है. नाउ कम ऑन द ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. एग्जैक्टली क्या होती हैं? ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट किसी पर्सन के साथ या किसी ग्रुप के साथ हैंड शेक कर लेती है, मींस उनके साथ मिल जाती है और दे डिसाइडेड कि दोनों मिलकर जो है वो इंडस्ट्री को रन करेंगे. उसमें क्या होता है कि कुछ शेयर गवर्नमेंट का होता है और कुछ शेयर इंडिविजुअल पर्सन्स का या ग्रुप का होता है, ठीक है. हम इन्हें लिमिटेड कंपनीज कहते हैं. इसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट जैसे ही होते हैं, ठीक है. इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ऑयल इंडिया लिमिटेड इज ज्वाइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों ने मिलकर चलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें हम ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं. मैक्सिमम जो लिमिटेड इंडस्ट्रीज हैं दे आर अंडर दिस. ओके, नाउ कम ऑन द कोऑपरेटिव सेक्टर. Cooperatives class 10th, you read about the cooperatives in your economics book chapter 3 also. You all know that what are cooperatives. Cooperatives are those industries, those are run by two type of person. One who supply the raw material and second that who provide money, workers, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है. इसको ध्यान से समझना. कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. एग्जैक्टली कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं दे आर रन बाय टू टाइप ऑफ पर्सन. टू टाइप ऑफ पर्सन्स होते हैं इसमें, ठीक है. वन हु प्रोवाइड, एक तो वो जो क्या प्रोवाइड करवा रहा है? रॉ मटेरियल. एंड सेकंड वो जो हु प्रोवाइड क्या? कैपिटल, और वी कैन से लेबर, मशीनरी, ठीक है. तो वो किस में आ गया? वो कोऑपरेटिव सेक्टर में आ गया. 50-50 पार्टनरशिप पर चलता है ये. 50-50 पार्टनरशिप पर चलता है, मतलब प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग बोथ ऑफ दीज. That is cooperative sector. Okay, so here we have 4 type of industries on the basis of ownership. Public sector run by government, private sector it is in the hand of an individual personality, joint sector when both these come and join together and then run the government.
And cooperative sector, here we have two type of persons. One is who provided raw material and second who provided capital. Okay, so this is your cooperative sector. Industries owned by, operated by producers or supplier of raw material, workers or both. They pool in the resources and share the profit or losses proportionally. ठीक है, प्रोपोर्शनली वो अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं. Many sugar industries in Maharashtra and core industry in Kerala is under this cooperative sector. Maximum sugar industry, milk producer, milk industry जो हमारी है, that is under this cooperative sector. ठीक है, so with this one more is लेफ्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. ये भी रॉ मटेरियल के बेस पर है बच्चे. अभी मैंने आपको रॉ मटेरियल के बेस पर बताया था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. अब एक और लेफ्ट रह गया. देखो, दो तरह के रॉ मटेरियल होते हैं. जो मैंने आपको एग्रो और मिनरल बताया है, उसमें वो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम द एग्रीकल्चर और फ्रॉम द मिनरल्स. अब हम ऑन द बेसिस ऑफ करेंगे, यहाँ पर वो टाइप था, यहाँ पर रॉ मटेरियल के बल्क और वेट के बेस पर हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग वी डिवाइडेड द इंडस्ट्रीज इनटू फर्दर टू पार्ट्स. वन इज हैवी इंडस्ट्री, सेकेंड इज लाइट इंडस्ट्री. ध्यान से सुनना, हैवी इंडस्ट्री कौन सी है? हैवी इंडस्ट्री. एंड सेकेंड इज लाइट इंडस्ट्री. अब हैवी इंडस्ट्री, दैट इन विच दैट रॉ मटेरियल इज, जो रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है, यूज्ड इन इंडस्ट्री, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है दैट इज हैवी इन वेट. हैवी इन वेट, जैसे कि आयरन ओर. आयरन ओर क्या है? एक हैवी रॉ मटेरियल है. अब इस हैवी रॉ मटेरियल की वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है वो वहीं पर इस्टेब्लिश की जाती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जहाँ पर हमें आयरन और ईजिली अवेलेबल हो जाता है, ताकि इस रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा खर्चा ना हो. ये एक हैवी रॉ मटेरियल है जिसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है. एंड यू कैन सी मैक्सिमम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर इस्टेब्लिश नियर इट्स आयरन ओर माइंस. जहाँ पे हमें आयरन ओर मिल रहा है वहीं पर है. ठीक है, तो ये हैवी रॉ मटेरियल है. सेकेंड इज लाइट इंडस्ट्री, लाइक कॉटन. कॉटन क्या है? एक लाइट वेट होता है, बहुत हल्की होती है कॉटन. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, चलो, कॉटन एक लाइट वेट इंडस्ट्री है. ठीक है, बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज बल्क, बल्की. अब कॉटन लाइट वेट है बट बल्की है. बल्की इन द सेंस कि स्पेस घेरती है. कॉटन आप चाहे 5-7 किलो कॉटन बड़ी इजीली कैरी कर सकते हो, बट वो बहुत स्पेशियस है, बहुत सारा जगह घेर लेगी. तो इसलिए भी ये इंडस्ट्री वहाँ इस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पर हमें कॉटन एज ए रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा, क्योंकि स्पेस घेर रहा है तो थोड़े एक बार में थोड़ा ही जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, अब बल्क के आधार पर हम चलते हैं आयरन एंड स्टील. दिस इज ऑल्सो बल्की. आयरन और भी बल्की होता है. ठीक है, बट अब बल्क के बेस पर ही चलते हैं शुगर इंडस्ट्री में. शुगर केन, शुगर केन इज ऑल्सो नॉट हैवी. शुगर केन बहुत हैवी नहीं है, बहुत लाइट भी नहीं है, एवरेज है, बट इट इज बल्की. ये क्या है? बल्की है. एक अगर आप देखते हैं, हम तो शुगर मिल के पास ही रहते हैं. ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जब गन्ने का सीज़न आता है तो ट्रॉलीज भर भर के जाती हैं. इसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक जाम्स हो जाते हैं. ठीक है, तो बल्की है शुगर केन. ठीक है, तो यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज वहीं इस्टेब्लिश होती हैं नियर द रॉ मटीरियल, जहाँ पर उन्हें रॉ मटीरियल ईजिली अवेलेबल होता है. ओके, तो हैवी और बल्की का मतलब समझ गए. तो वी आर ऑन द बल्क एंड वेट वी डिवाइडेड द इंडस्ट्रीज इनटू हैवी एंड लाइट इंडस्ट्री.
हैवी इंडस्ट्री कौन सी है? आयरन एंड स्टील। और लाइट इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? सच एज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ये क्या है? ये लाइट इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। विद दिस योर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज कंप्लीटेड नाउ। ओके, अब आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है कंप्लीट हो गया है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू बी लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज को स्टडी करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन, इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं हर इंडस्ट्री को, दैट इज ओके। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।